11. These three are completely related to plant tissue culture. So we have to study everything, whatever is there in the plant tissue culture, all the topic we have to cover. And from 12 to 13, it is related to plant genetic transformation. Transgenics, what are their importance? What are the procedure of producing the transgenics, right? 14 and 15, it is related to markers and how to run markers using PCR. And 16 is, while working with biotechnology, especially genetic transformation, there are certain rules and regulations that needs to be followed. So what are those biotechnological rules and regulations? We have to study in this serial number 16. So this is all about the syllabus that is in your course and which is in biotechnology portion. So starting with the concept of plant biotechnology, concept and application of plant biotechnology, I have some slides. And for your information, I'll be sharing the same slides or whatever notes I'll be teaching in your presentation. I'll be sending you. I think it is better to create a Google Classroom, and I'll send you the link for that Google Classroom. You all should join that Google Classroom. All the lecture materials will be available in that Google Classroom. So you can download it whenever you want. So let's start our first class with the topic history and concept of biotechnology. So the first thing that you should know is, what do you understand by biotechnology, right? So biotechnology is nothing but control use of biological agents for beneficial use. If you don't remember complicated answer, okay, अगर आप लोगों को complicated answer बायोटेक्नोलॉजी का definition, complicated definition अगर आप याद नहीं भी कर सकते हो, तो एक simple सा definition इसको याद कर लो कि बायोटेक्नोलॉजी इज ए कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज. मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्निक है ना, जिसपे हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स को, लिविंग एजेंट्स को, लिविंग बीइंग ना, बायो मीन्स लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग को आइदर एज ए होल, मतलब लिविंग बीइंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को या उसका पार्ट को किसी भी बेनिफिशियल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी. ओके, अगर आपने एक प्लांट लिया और प्लांट का एक फ्लावर उठा के किसी चीज में यूज कर लिया, दैट बिकम्स बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. सिमिलरली अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा के उसने उसका पार्ट को या उसका प्रोडक्ट को अगर आप कहीं पे भी यूज करते हो, तो वो बन जाता है a part of biotechnology. So biotechnology का definition क्या है? It is a control use of biological agents for beneficial use. It is clear that biotech is in fact an old and well-established science producing products that are important and familiar to all of us. While the three main forms of biotechnology are medicinal, agricultural and industrial, sometimes called as red, green and white biotechnologies respectively. तो ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी अभी शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी 10-20 साल पहले शुरू हुआ है. कॉलेज में कोर्स पढ़ाना बायोटेक्नोलॉजी में, एक पार्टिकुलर सेपरेट कोर्स जो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से कोर्स शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है लगभग 20-30 साल पहले. लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि 20-30 साल पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी का प्रैक्टिस में था. बायोटेक्नोलॉजी पहले से था. इट वॉज इन फैक्ट क्लियर दैट बायोटेक्नोलॉजी इज एन ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस. बहुत ही पुराना साइंस है और एस्टैब्लिश साइंस है बायोटेक्नोलॉजी. वो कैसे हम लोग वन बाय वन देखेंगे. और बायोटेक्नोलॉजी को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सो मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी. तो जो मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी है उसको रेड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. जो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है उसको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. और जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है उसको व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. सो यू शुड नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेड बायोटेक्नोलॉजी. रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. जितना भी टेक्निक्स जो बायोटेक है, जो मेडिकल में यूज किया जाता है,
उसको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और इन अदर नेम रेड बायोटेक्नोलॉजी। सिमिलरली एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी को ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री में जो भी जितना भी माइक्रोब्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट को इंडस्ट्री लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है, उसको व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी कैन बी ग्रुप्ड इनटू एंशिएंट एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये जो ऊपर में था, इट इज बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन। ये जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये इट इज डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन। आपसे पूछ सकता है, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री के हिसाब से अगर आपको पूछा गया, तो इट इज डिवाइडेड इनटू एंशिएंट एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एंशिएंट में क्या क्या था और मॉडर्न में क्या क्या है, वो लिखना होता है आपको। अगर आपसे पूछा गया कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन, तो उसमें आएगा आपका मेडिकल, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी कितने में है? दो प्रकार में, एंशिएंट एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग एंशिएंट से शुरू करते हैं। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, अब लुक एट नंबर्स को देखो। 6000 बीसी कितना पुराना है? हर्बल मेडिसिन, हर्बल मतलब प्लांट्स, हर्ब्स है ना, और प्लांट इज अ लिविंग बीइंग। अगर प्लांट को अगर आप किसी भी चीज में यूज कर रहे हो, तो दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज यू आर यूजिंग प्लांट इन सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, so that becomes biotechnology. And medicine, it dates back to 6000 BC, 6000 साल BC, इतना पुराना है। ठीक है ना। अभी एडी में हम लोग इमेजिन करो 6000, अभी टोटल मिला के ऑलमोस्ट 8000 साल पुराना है ना। तो आयुर्वेदा, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 6000 BC। एक बुक है जिसका नाम है चरक संहिता, और चारक संहिता 1949 में लिखा गया है। उसमें मेंशन किया गया है कि आयुर्वेदा में ये जो हर्बल मेडिसिन का बारे में 6000 BC, उतना साल पहले ही इसके बारे में मेंशन किया गया है, और प्रैक्टिस करते थे लोग हर्बल मेडिसिन 6000 साल BC पहले। For most of these 6000 BC years, ashwagandha has been used as a rasayana. The root of ashwagandha is regarded as a medicine. अब ये जो आयुर्वेदा है, ये 6000 साल पहले जो BC में जितना भी मेंशन किया गया हर्बल के बारे में, उसमें सबसे ज्यादा मेंशन है अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट, उसका जो रसायन, और रसायना मतलब उसका जूस है, जो वो यूज किया जाता था फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट डिजीजेस, और इट इज रिगार्डेड एज मेडिसिन। सेकेंड एग्जाम्पल एंशियंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी का। फर्स्ट एग्जाम्पल था हॉर्बल मेडिसिन, हो ना, वो 6000 BC आयुर्वेदा में मेंशन किया गया, और प्लांट का एग्जाम्पल का नाम देख सकते हो आप लोग, अश्वगंधा था। सेकेंड एग्जाम्पल की बायोटेक्नोलॉजी कब से था, तो दूसरा एग्जाम्पल है वाइन एंड बियर। जो अल्कोहल कंजप्शन था, वो इट डेट्स बैक टू 7000 to 8000 BC, मतलब हर्बल मेडिसिन से भी पहले 7000 to 8000 BC। इसका मतलब ये लोगों ने पहले ड्रिंक करना शुरू किया, उसके बाद दवा ढूंढना शुरू किया। 7000 to 8000 BC. The oldest archaeological evidence of wine produced from grapes has been found at sites in China. चाइना में 7000 BC पहले का कुछ रिमेन्स मिला है, जो वाइन बनाने या वाइन कंजम्पशन में यूज किया जाता था। ठीक है ना। उसी तरीके से जॉर्जिया में भी ऐसा साइट पाया गया है, जहाँ पे अल्कोहल या वाइन एंड बियर रिलेटेड कुछ रिमेन्स मिले हैं, जो डेट बैक टू 8000 BC। इसका जो डेट पता करने से वो कम से कम 8000 साल पहले का है, BC साल पहले का। ठीक है। तो इस तरीके का कुछ मटका वाइन कॉप्स मिले हैं, कुछ ऐसे मिले हैं। अब जो आर्कियोलॉजिकल
साइंटिस्ट लोग के वॉट एवर दे हैव मेंशन वी हैव टू फॉलो, क्योंकि वो लोग को लगा होगा कि ये वाइन पीने वाला मग है, तो दे हैव मेंशन कि चाइना में और जॉर्जिया में इतना साल पहले से वाइन पिया करता था। तो वहां से पता चल गया कि वाइन एंड बियर इतना साल पहले से शुरू हो चुका था। और क्योंकि वाइन और बियर बनाने में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्ट एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोब्स, है ना। यीस्ट लगता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी के बाद ही तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन से जो वाइन बनता है और बियर बनता है, कि उसमें इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, तो वाइन एंड बियर इट कम्स अंडर अल्कोहल प्रोडक्शन, इट कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। सिमिलरली ब्रेड 4000 BC, it dates back to 4000 BC. The very first leavened bread was sourdough, of course. Sometime around 4000 BC, an Egyptian baker planned to make the traditional tortilla-like unleavened bread. But the dough sat around for a couple of hours and the wild yeast in the air started to work. When the baker got around to put the dough in the primitive oven of the time, just a hearth with a clay dome mounted over it to concentrate the heat, to everyone's astonishment, it popped up. इसमें क्या कहानी, मजेदार कहानी है। क्या है कि 4000 साल पहले, लगभग 4000 4000 BC, इतना साल पहले, इतना 1000 साल पहले, एक इजिप्शियन बेकर जो ये सब रोटी वगैरह बनाता था, इजिप्ट का आदमी, उसने एक हमेशा की तरह जो ट्रेडिशनल टॉर्टिला लाइक अनलीवन ब्रेड होता है, मतलब जिसपे ईस्ट वगैरह नहीं डाला होता है, जो नॉर्मल ब्रेड होता है अनलीवन, जो रोटी बनते बिना ईस्ट का, उस तरीके का वो नॉर्मल सा रोटी बना रहा था, बनाने का प्लान कर रहा था। और बनाने के लिए उसने डो बना लिया है ना। अब डो बना के उसने डो को थोड़ा देर के लिए बाहर ही छोड़ दिया फॉर कपल ऑफ आवर्स। दूसरा काम होगा, कुछ काम करने चले गए होंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो जो एयर में जो ईस्ट होता है, वाइल्ड ईस्ट जो होता है, वो डो में जाके उसने फर्मेंटेशन शुरू कर दिया। जो डो बना के रखा था, आटा गूंद के रखा होगा, आटा मैदा जो भी उस टाइम का था वो गूंद के रखा था, उस पे अब ईस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो आजकल नॉर्मली हम लोग ब्रेड में डालते हैं। उस टाइम पे वो नेचुरली एयर में जो ईस्ट था वो जाके वो डो में घुस गया और फर्मेंटेशन शुरू कर दिया। अब वो आदमी अपना काम खत्म करके अब फिर से रोटी बनाने में लग गया। अब उसको पता नहीं था कि उसमें अब ईस्ट का एक्टिविटी हो चुका है। उसने बस 2-3 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया था, या उससे ज़्यादा आवर के लिए बाहर छोड़ दिया था। अब वाइल्ड ईस्ट ने वहाँ पे फर्मेंटेशन कर दिया है। तो फिर उसने नॉर्मल जो हमेशा रोटी बनाते हैं उसी तरीके से, जब जो मिट्टी का जो ओवन चूल्हा बना होता है उसमें रोटी को गर्म करना शुरू किया, तो वो रोटी पफ्ड अप, मतलब फूल गया, फूलना शुरू हुआ। तो नॉर्मल बिना ईस्ट का रोटी होता है वो इतना वो पफ्ड नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे जो बाजार में जो हम लोग को ब्रेड मिलता है, बन मिलता है, उसमें ईस्ट डाला होता है, इसीलिए वो बहुत ही फ्लफी होता है ना, पफ्ड होता है। तो उससे जो हमेशा वो रोटी बना था वो इतना फुलता नहीं था, और उसके लिए वो सरप्राइज हो गया, एस्टोनिशमेंट, फॉर एवरीवन्स एस्टोनिशमेंट, इट पफ्ड अप, वो रोटी फुल गया। तब से वो क्या करने लगे, डो बना के फॉर फ्यू आवर्स दे शुड लीव इट आउटसाइड इन द ओपन एयर, ताकि जो वाइल्ड ईस्ट है वो अपना काम करे, फर्मेंटेशन करे। तब से ये पफ ब्रेड और यू कैन से लीवन्ड ब्रेड बनना शुरू हो गया, ठीक है। एंड बिकॉज देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईस्ट अगेन, जो कि एक माइक्रोब से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज ऑल्सो कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। और ब्रेड तो 20 साल पहले से ब्रेड बनना शुरू नहीं हुआ, ये तो हजारों साल से ब्रेड बनते आ रहे हैं ना। तो इट कम्स अंडर एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। नाउ मोर इंटरेस्टिंग, वैक्सीन। अभी थोड़ा हम लोग इतना हजारों साल BC, 4000 BC, 8000 BC, 6000 BC से अब वो छोड़ के हम लोग अब तुरंत आगे 1796 AD, है ना, अब से लगभग 200-300 साल पहले, है ना, 1796 AD। The smallpox vaccine was introduced by Edward Anthony Jenner। हम लोग एडवर्ड जेनर के नाम से जानते हैं, उसका फुल नेम है एडवर्ड एंथनी जेनर। इन 1796 was the first successful vaccine to be developed.
क्योंकि वैक्सीन में भी देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी है एक वन ऑफ द टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और वैक्सीन तो आज के दिन में तो इट इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो जो पहला वैक्सीन बना था वो था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और किसने बनाया था? एडवर्ड एंथनी जेनर। और किस साल में बनाया था? 1796 में। अब इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। इन May 1796, एडवर्ड जेनर फाउंड ए यंग डेयरी मेट, जो चढ़ाता है जंगल में, चढ़ाने के लेके चले जाते हैं, उसको डेयरी मेट कहते हैं, है ना। तो सारा उसका, वो जो लड़का का यंग डेयरी मेट, उसका नाम था सारा नेम्स, who had fresh cowpox lesion on her arms, okay, on her hands and arms. On May 14, 1796, मतलब ये जो सारा नेम्स, जो एक यंग लड़की थी जो गाय बछड़े को चढ़ाता था, उसके हाथ में काउपॉक्स आया हुआ था। तो जो काउपॉक्स बीमारी है, तो उसका हाथ और आर्म्स में वो काउपॉक्स का बहुत सारा दाग था, ठीक है। उसने देखा, और वो किसने देखा? एडवर्ड जेनर ने देखा। On May 14, 1796, using the matter from Name's lesion, he inoculated an 8-year-old boy named James Phipps. अब उसने क्या किया? एडवर्ड जेनर ने जो सारा नेम्स, जिसके हाथ में काउपॉक्स का घाव था, वो घाव से कुछ कुछ फ्रेश, उसमें से जो स्टिकी या जो भी इन्फेक्शियस रीजन होता है, वो उठा के क्या किया उसने? ही इनोकुलेटेड 8-year-old बॉय, 8-year-old बॉय को उसका स्किन में इंजेक्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके। अब उस टाइम का इंजेक्शन कैसा था होगा 1796 में, तो उस तक उसने इनोकुलेटेड कर दिया एक 8 साल के लड़के के हाथ में, जिसका नाम था जेम्स फिप्स, ठीक है। ये जो फोटो में दिख रहा है, ये एडवर्ड जेनर, और ये जो छोटा लड़का दिख रहा है, ये जेम्स फिप्स, ठीक है ना। तो इसके हाथ में दूसरा इन्फेक्टेड लड़की का घाव से कुछ कुछ इनोकुलम लेके ये लड़के का हाथ में उसने इनोकुलेट कर दिया या इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द बॉय डेवलप्ड माइल्ड फीवर एंड डिस्कम्फर्ट इन दी एक्सिले, है ना। मतलब शुरू शुरू में ये लड़के को क्या हुआ? उसको माइल्ड फीवर हुआ। उसके बाद उसका जो आर्मपिट एरिया होता है, आर्म का जो निचला हिस्सा होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना शुरू हुआ। 9 days after the procedure, he felt cold and had lost his appetite. अभी क्या कोरोना में भी वही होता है ना, you feel cold, सर्दी जुकाम होता है, खांसी होता है, उसके बाद आपका टेस्ट, खाना का टेस्ट चला जाता है, एपिटाइट खाने का मन नहीं करता, लॉस हो जाता है, एपिटाइट लॉस हो जाता है। तो ये लड़का को भी उसी तरीके का सिम्टम आया। मतलब जब इनोकुलेट किया, उसके बाद आफ्टर 9 days ही फेल्ड कोल्ड, उसको सर्दी जुकाम हुआ, उसके बाद ही लॉस इस एपिटाइट, को खाने का मन नहीं कर रहा था। बट ऑन द नेक्स्ट डे, 9th डे में उसको ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कोल्ड भी हो रहा था और एपिटाइट भी नहीं हो रहा था। लेकिन 10th डे के बाद ही वॉज फीलिंग मच बेटर, वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था, मतलब वो रिकवर कर गया, उसका बॉडी रिकवर करना शुरू कर गया था। इन जुलाई 1796, जेनर इनोकुलेटेड द बॉय अगेन, सेम जेम्स फिप्स को फिर से इनोकुलेट किया स्मॉल पॉक्स का इनोकुलम, ठीक है ना। बट दिस टाइम विथ मैटर फ्रॉम द फ्रेश स्मॉल पॉक्स लेजन, नो डिजीज डेवलप्ड, मतलब अब वो लड़का को डिजीज हुआ ही नहीं, मतलब वो रेजिस्टेंट हो गया था। एंड जेनर कंक्लूडेड दैट द प्रोटेक्शन वाज कंप्लीट, ओके। तो ये पहला वैक्सीन था, सक्सेसफुल वैक्सीन था। ड्यू टू दिस वर्क ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब क्वेश्चन आ सकता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? तो ये एक फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड एंथनी जेनर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, who was the first boy, first person to receive smallpox vaccine. Name is James Phipps. Okay. Then, almost after 90 years of Edward Jenner's work, Louis Pasteur developed the overall principle of vaccination and contributed to the foundation of immunology. लुइस पास्चर ने 1796 में वो सब काम किया था रिगार्डिंग स्मॉल पॉक्स, है ना। अब
जेनर का जो काम था उसके 90 साल बाद लुइस पास्चर ने बहुत सारा जो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है वो डेवलप किया। और इम्यूनोलॉजी में मतलब जो वैक्सीनेशन का प्रॉपर टोटल प्रोसीजर है उसमें उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है लुइस पास्चर का। ठीक है, पास्चर फर्स्ट important discovery in the study of vaccination came in 1879, मतलब almost 100 years after एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का क्या था 1796 था, है ना। तो ऑलमोस्ट 90 to 100 years के बाद लुइस पास्चर इन 1879 कुछ डिस्कवर किया। क्या किया था? एंड कंसर्न ए डिजीज कॉल्ड चिकन कोलेरा। जो चिकन कोलेरा डिजीज होता है उस पर उसने काम किया। लेटर ऑन ही decided working on cure of animal diseases like anthrax and rabies। rabies और anthrax पे भी इसने बहुत सारा काम किया और Pasteur is the one who developed first vaccine for rabies। तो rabies बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है स्पेशली इन डॉग्स, और वो किसी भी एनिमल में ट्रांसमिट हो सकता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, है ना। बहुत ही दर्दनाक डेथ होता है अगर इन्फेक्ट हुआ रेबीज से। तो उसके अगेंस्ट में फर्स्ट वैक्सीन लुइस पास्चर ने डेवलप किया था। ऑन जुलाई 6, 1885 पास्चर वैक्सीनेटेड जोसेफ मिस्टर, ए 9-year-old boy who had been bitten by rabbit dog। मतलब जो पागल कुत्ता होता है जिसको रैबिट हुआ है उसने एक लड़के को काटा था जिसका नाम था जोसेफ मिस्टर। ठीक है ना। तो इसको लुइस पास्चर ने वैक्सीनेट किया विद द रैबिस वैक्सीन। The vaccine was so successful that it brought immediate glory and fame to Pasteur। मतलब उस रेबिस अभी भी इतना खतरनाक डिजीज है। अब उस टाइम पे मान लो कितना 1879 अब से 200 साल पहले तो रेबिस कितना खतरनाक डिजीज था होगा। मतलब काट दिया इसका मतलब इंसान गया काम, है ना। उस टाइम पे ऐसे खतरनाक बीमारी के अगेंस्ट में लुइस पास्चर ने अपना वैक्सीन डेवलप कर दिया। तो वो वैक्सीन की वजह से वो लुइस पास्चर बहुत ही फेमस हो गया था। He got immediate glory and fame. Okay. Hundreds of other bite victims throughout the world were subsequently saved by Pasteur's vaccine, and the era of preventive medicine had begun। मतलब इसके साथ ही प्रिवेंटिव जो मेडिसिन होता है, स्पेशली प्रिवेंटिव मेडिसिन में मतलब वैक्सीनेशन का मतलब ये डिजीज को ही प्रिवेंट कर देते हैं ना। अगर डिजीज लगने के बाद आप दवाई करते हो वो तो ट्रीटमेंट हो गया, क्यूरेटिव मेडिसिन, है ना। लेकिन आप डिजीज होने ही नहीं दे रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। और ये बेसिकली होता है थ्रू वैक्सीनेशन। जैसे तो स्कूल टाइम में है ना, स्टूडेंट को अभी बच्चे को हेपाटाइटिस वगैरह का इंजेक्शन लगा देते हैं, वैक्सीनेशन कर देते हैं, टिटानस का इंजेक्शन भी कर देते हैं। अभी प्रेजेंट एग्जांपल इज कोविड का वैक्सीनेशन, है ना, कोविड-19 का वैक्सीनेशन, दैट इज प्रिवेंटिव। उससे अगर if you are exposed to corona also you will get infected if you are vaccinated। मतलब आपको प्रिवेंट करते हैं बीमार होने से, तो उसको प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन कहते हैं। तो लुइस पास्चर का ये रैबिस वाला वैक्सीन बहुत ही फेमस हो गया था। तो उसी वैक्सीन को लेकर एक छोटा सा जीके, द फर्स्ट पर्सन टू गेट कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड इन इंडिया, मनीष कुमार, सैनिटेशन वर्कर एट एम्स। जो एम्स अस्पताल है उसमें जो एक सैनिटेशन वर्कर जो सफाई कर्मचारी है जिसका नाम मनीष कुमार था, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट कोविड-19 वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन था? कोविशील्ड इन इंडिया। ठीक है। और रेबिस वैक्सीन का जो फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था? जोसेफ मिस्टर, 9-year-old। उस टाइम में 9 ईयर, अभी तक तो 300 साल 200 साल होने वाला। ठीक है। During 1860s, Louis Pasteur also demonstrated that thermal processing would। अब पास्चर का आपने दूसरे जगह भी नाम सुना होगा, पास्चराइजेशन, है ना। उसने एंथ्रैक्स, चिकन कोलेरा, रेबीज, ये सब में तो काम किया ही, उसके अलावा भी उसने थर्मल प्रोसेसिंग में भी काम किया। जैसे
also demonstrated that thermal processing would deactivate unwanted microorganism. मतलब अगर आप हीट को ही रेगुलेट करते हो, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हो, तब भी यू कैन डीएक्टिवेट अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे दूध है या कोई भी इडेबल्स है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किसी एक लिमिट तक ज़्यादा गर्म करोगे तो वो तो बॉयल ही हो जाएगा, है ना। किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको हीट करोगे तो जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाता है या मर जाता है। देन योर फूड प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, है ना। अगर आपके फूड प्रोडक्ट पे, स्पेशली मिल्क पे, मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो यू कैन स्टोर मिल्क फॉर लॉन्गर डेज। अगर उस पे मिल्क पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो एक ही दिन में खराब हो जाएगा, 2 दिन में खराब हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया कि एंजाइम्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट थर्मल प्रोसेसिंग वुड डीएक्टिवेट अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म। उसने बताया कि थर्मल प्रोसेसिंग अगर करोगे तो बहुत सारा अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इन वाइन, उसने वाइन पे किया था ये, ठीक है ना। स्पोइलेज एंजाइम्स आर आल्सो इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग थर्मल प्रोसेसिंग एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत सारा जो वाइन के अंदर में बहुत सारा जो एंजाइम्स होता है जो वाइन को खराब करता है वो भी इनएक्टिवेट हो जाता है आफ्टर थर्मल प्रोसेसिंग। कितना टेम्परेचर पे? 50 to 60 डिग्री, है ना। 50 to 60 डिग्री, राजस्थान में तो 50 to 60 डिग्री कभी कभी पहुंच ही जाता होगा, है ना। तो वो बॉइलिंग टेम्परेचर भी नहीं है, बट बहुत ही गर्म है, जितने में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। इन ऑनर ऑफ पास्चर, दिस प्रोसेस इज नोन एज पास्चराइजेशन। ये जो थर्मल प्रोसेसिंग का जो 50 to 60 डिग्री में गर्म करने वाला जो प्रोसेस है, इन ऑर्डर टू ऑनर, पास्चर को इज्जत देने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए ये प्रोसेस का नाम रखा गया पास्चराइजेशन। तो अभी अब दूध खरीदने जाते तो पास्चराइज मिल्क मिलता है हमें, तो जितना भी ये सुधा हुआ जो भी है, जो पैकेट मिल्क मिलता है हम लोगों को, अमूल का हुआ, ऑल आर पास्चराइज मिल्क। टुडे पास्चराइजेशन इज widely used in the dairy industry and other food processing industry to achieve food preservation and food safety, है ना। लुईस पास्चराइजेशन का ये जो फिगर दिखाया गया है, ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। हीट अप्लाइड, है ना, फ्लास्क में वाइन था, थोड़ा सा हीट अप्लाई किया और ठंडा होने दिया, चेक किया, नो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पाया है नहीं, ठीक है। सेकेंड में क्या है? हीट अप्लाइड है, रिमूव द नेक एंड, मतलब ऊपर का ढक्कन खोल दिया, मतलब अब एक्सपोज कर दिया। पहले गर्म किया, फिर से आपने उसको एक्सपोज कर दिया। तो एक्सपोज करोगे तो जब ये ठंडा होगा उसके ऊपर फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाएगा, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट, है ना। थर्ड में क्या है? हीट अप्लाइड, टिल्ट फ्लास्क साइडवेज एंड लेट इट सिट, मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया, जिससे ये जो ऊपर का जो लिड है ये ग्राउंड में टच कर रहा है। तो ग्राउंड में टच करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इजीली एंटर टू दैट लीड, है ना। तो फिर से उसमें बैक्टीरिया पाया गया। तो इसका मतलब पहले आप हीट करके इसके अंदर में जितना भी माइक्रोब्स है उसको इनएक्टिवेट कर रहे हो या उसको मार रहे हो, है ना। उसके बाद जब आप उसको ठंडा होने देते हो तो इट शुड बी कंप्लीटली कवर्ड, इट शुड बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। जैसे मिल्क होता है, पास्चराइज करने के बाद उसको प्लास्टिक में बंद कर देता है, कहीं से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुसने का चांस ही नहीं है, तब जाके वो थोड़ा दिन तक टिक पाता है ना। तो अगर प्लास्टिक का किसी भी जगह थोड़ा सा भी छेद हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एंटर एंड स्पॉइल द मिल्क और एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है पास्चराइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं द इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड जेनेटिक्स लीडिंग टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो इन नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट अबाउट ऑल दिस थिंग, ओके। हिस्ट्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। सो इनफ फॉर टुडे, लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ।